برف پگھلنے لگی، کے پی اور وفاق ایک پیج پر، لوڈ شیڈنگ واجبات کے مسائل کے حل کے لیے راستہ نکال لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر توانائی کی ملاقات میں بڑا بریک تھرو۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ایسا حل نکالا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ کے پی اور وفاق مل کر کام کریں گے، لائن لاسز کا مسئلہ مل کر حل کریں گے، عوام کو سولر بجلی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے ملاقات کا مقصد عوام کو ریلیف دینا تھا، آج بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ اویس لغاری نے کہا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بجلی چوری کی روک تھام سے ہی ہو سکتا ہے۔ کے پی حکومت کے ساتھ مل کر جو ماڈل بنایا اسے دیگر صوبوں میں بھی لاگو کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی اویس لغاری سے ملاقات، صوبے میں بجلی کی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شکوہ۔ اویس لغاری نے کہا کے پی میں اربوں کی بجلی چوری روکیں، ہم 24 گھنٹے بجلی دینے کو تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 الگ الگ آپریشنز، 23 دہشت گرد جہنم واصل، فائرنگ کے تبادلے میں 7 جوان وطن پر قربان۔ 26 مئی کو حسن خیل میں آپریشن، 6 دہشت گرد مارے گئے، کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ شہید۔ ٹانک میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ خیبر کے علاقے باغ میں سیکیورٹی فورسز نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر کے علاقے باغ میں شہید ہونے والے 5 فوجی جوانوں کے پشاور میں نماز جنازہ ادا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، کور کمانڈر پشاور، اعلیٰ سول اور فوجی حکام کی شرکت۔ شہداء میں سپاہی تیمور ملک، نادر صغیر، محمد یاسین، لانس نائک، سید دانیہ افکار اور نائک اشفاق بٹ شامل۔ آرمی چیف کا سی ایم ایچ پشاور کا دورہ، زخمی ہج سپاہیوں کی عیادت کی، سپاہیوں کے بلند حوصلے کو سراہا، پوری قوت کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کو دہرایا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان باغ میں پاک فوج کے کامیاب آپریشن پر افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین، شہید ہونے والے 5 جوانوں کو خراج عقیدت۔ کہتے ہیں دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ الیکشن ٹرائیبیونلز کے قیام سے متعلق قانون میں ترمیم، حاضر سروس کے ساتھ ریٹائرڈ جج بھی انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن ٹرائیبیونلز کا حصہ ہوں گے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2023 میں ترمیم کی گئی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کی بھی منظوری۔ آرڈیننس کے تحت نیب آرڈیننس کے تحت زیر حراست ملزم کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ نیب افسروں کی طرف سے بدنیتی پر مشتمل نیب ریفرنس بنانے پر سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی کی کوریج پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کورٹ رپورٹرز کو روزمرہ کی عدالتی رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پیمرا کے 21 مئی کے نوٹیفیکیشن کی پابندی سے متعلق شقوں پر عمل درآمد روک دیا۔ پیمرا، وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے 6 جون تک جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کورٹ رپورٹرز کو بھی عدالتی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بعض ریمارکس یا آبزرویشن نشر ہونے سے عدلیہ کا غلط تاثر چلا جاتا ہے۔ ملک بھر میں شدید گرمی، لو کے تھپیڑوں سے عوام کا برا حال۔ سندھ میں پارہ 51 اور پنجاب میں 50 سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دادو اور موہنجو داڑو 50، جیکب آباد، سکر اور سبی میں 49 تک پہنچ گیا۔ رحیم یار خان میں 48، بہاولپور میں 47، ملتان میں 46، لاہور میں 44 اور کراچی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 29 سے 31 مئی تک کراچی میں ہیٹ ویو کا خدشہ، مئی کے آخری 3 دن شہر کا پارہ 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 1 جون کے دوران بارش کی پیشگوئی۔ بالائی علاقوں خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بادل برسیں گے۔ کراچی، ٹھٹہ بدین، حیدرآباد میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد، مری، لاہور، قصور، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور دیگر شہروں میں بارش ہوگی۔ پی ٹی ایم پنجاب نے بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا۔
मुल्क भर में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का अजाब, बिजली का शॉर्ट फॉल 6186 मेगावाट हो गया। लाहौर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुख्तलिफ शहरों में तकनीकी खराबियों, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से मसाइल 2 गुना। पेशावर, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। औरंगी टाउन, सिटी रेलवे कॉलोनी, मलीर, गुडाब, कायदाबाद, लियारी, नाजमाबाद, सुरजानी, लाइन्स एरिया में सूरत हाल की संगीनी। बिजली की बार बार बंदिश से अवाम का बुरा हाल। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों पर सिंध हुकूमत का सब्र भी जवाब दे गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन की वार्निंग, कहा कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं। बिजली फराहम करने वाले इदारे अपना क़िबला दुरुस्त करें। मीटर रीडिंग के बजाय अंदाजों पर बिल भेज देते हैं। 10 डिफॉल्टर होने पर 100 घरों के PMT उतार कर ले जाते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले इज्तिमाई सजा नहीं दे सकते। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून हरकत में आएगा। असेंबली से बिल पास करवाया तो के इलेक्ट्रिक ने खत लिख दिया कि हुकूमत की जानिब हमारे वाजिबात हैं। अपनी लालच और नाअहली की सजा गरीब आवाम को मत दें। वज़ीर-ए-आज़म का कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंक्स और अदालतों में भी छुट्टी होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं यौम तकबीर मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। 28 मई को जिस तरह मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, वैसे ही मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम मई नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। नवाज शरीफ नून लीग की पार्टी सदारत संभालने को तैयार। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी कल सुबह 10 से 12 बजे तक जमा कराए जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया। कल 4 बजे नून लीग के नए सदर का इंतखाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते हैं। अहलियत का फैसला स्क्रूटनी कमेटी करेगी। मजीद बोले पूरी जमात चाहती है नवाज शरीफ लीड करें। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं, पार्टी में मुतहर्रिक हैं। नवाज शरीफ के बयानात की जो कमी महसूस हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। बानी PTI को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। नून लीग के मंशूर में नैब को खत्म करना था। यूसुफ रजा गिलानी समेत PP रहनुमा नैब कानून के खिलाफ दिन रात तकरीरें करते थे। इख्तिदार में आते ही तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हवा हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है नैब का कानून फिर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग का महबूब हथियार बन गया है। पैमरा नोटिफिकेशन का मतलब ओपन ट्रायल को बंद करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। फवाद चौधरी की रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत, IPP में शमूलियत की तरतीब। मुल्क दुश्मन कुव्वतें सरगर्म हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये अपनी सियासी बका को मुल्क की सालमियत से मुंसलिक करते हैं। उनकी IMF को खत लिखने, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की साजिशें नाकाम हुई। भरे मजमे में साइफर लहरा कर इन्होंने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात खराब किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मजलूमियत का ढोंग रचाने वाले अपने इक़दामात पर शर्मिंदा भी नहीं होते। इनकी ख्वाहिशात के बरक्स मईशत मुस्तहकम हो रही है। UAE ने $10 अरब मुख्तस किए। सऊदी अरब के साथ $5 अरब सरमायाकारी पर पेशरफ्त हुई है। SIFC मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए कोशिशें कर रही है। सिफारती महाज पर भी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक इजलास। इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ हासिल करने में नाकामी पर बरहमी। मरियम नवाज का इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड तब्दील करने का हुक्म। कहा इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और टीम का परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाए। इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए कायम की गई हैं।
टैक्स नेट में इजाफे के लिए FBR की नई तजावीज़ तैयार। आइंदा बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। टाइल्स इंडस्ट्री में भी ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मजीद इख्तियारात मिलेंगे। अहम कारोबारी सप्लाई चेन को दस्तावेजी बनाया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट होगा। कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारफ करवाने का फैसला। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद की सप्लायर की मॉनिटरिंग की जाएगी। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी, पैदावारी लागत को कम करने की जरूरत है। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, सरकारी कॉर्पोरेशंस की निजकारी पर जोर। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। मौशी ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाने के इक़दाम नागुज़ीर हैं। IMF मिशन ने मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। हालिया और नए प्रोग्राम को मजीद सपोर्ट मिलेगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान के हालिया मुआशी इस्लाहात एजेंडे पर अमेरिकी ताउन पर रोशनी डाली। कहा, अमेरिका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मयारी सरमायाकारी का जरिया और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी तरक्याती इक़दामात पर काम करने के लिए पुरज़्म है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी मुतवक्के। ओगरा हतमी समरी 31 मई को पेट्रोलियम डिवीजन को भेजेगी। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का बेड रेस्ट खत्म। सियासी मुलाकातें शुरू। कसूर से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों की परवेज इलाही के साथ मुलाकात। रिहाई पर मुबारकबाद, खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने तीमारदारी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में परवेज इलाही, उनकी अहलिया और बेटे रासिख इलाही समेत दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का मिशन। कौमी टीम की कार्डिफ में प्रैक्टिस। साइम अयूब और शादाब खान को स्क्वाड में शामिल न किए जाने का इम्कान। उस्मान खान और इब्रार अहमद को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ओपनिंग जोड़ी में भी तब्दीली मुतवक्के। पाकिस्तान और इंग्लैंड कल तीसरे T20 मैच में आमने सामने होंगे। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख। दूसरे में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हारिस रऊफ का कहना है कि मैच हारने पर दुख होता है। कौमी टीम किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को हरा सकती है।